Hello, friends. I am Dr. Jaskaran Singh, and we welcome you back to Association of Pediatricians Video Forum. And I have along with me Dr. Ridhi. She's a practicing pediatrician working in Tri-City based in Mohali, and I am Dr. Jaskaran. I am a practicing pediatrician and neonatologist working in Chandigarh. And on behalf of AOP, we are here to bring to you a small video to tell you more about sleep in your child. Okay. Hi, Dr. Jaskaran. Thanks for Salam. taking me on this session. Yeah, I just wanted to ask you, like parents have a very frequent question, why is sleep important for their kids? So, like So what would you like to say about that? So to put it in a very simple words, sleep is as much important as waking up. So जो सोना है, it is a dynamic process in which our body reboots, it conserves energy, and there is repair taking place. New memories are being consolidated, and so on. And it is important that we get good quality and good quantity of sleep, so that our physiological functions, our mental functions, our developmental issues are all taken care of. So it's very important that whatever age group you are, whether a child or adult, that you have a good quality and good quantity of sleep. Okay. I think that answers it. बहुत सही कहा आपने. It is very important. जितना जागना important है, उतना ही सोना भी important है. जी मैम. Are there any stages of sleep as well, Dr. Jaskaran? Yes. Technically, the sleep can be divided into two parts: the active sleep and the deep sleep. तो इसका जो टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, एक्टिव स्लीप को हम REM स्लीप कहते हैं, और जो डीप स्लीप है उसको हम नॉन REM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं. So during when a person is sleeping, he will cycle with REM and non-REM alternating over couple of cycles, 3 or 4 cycles, and so forth. What happens as you go through the night? तो जो time spent in NREM sleeps keep on decreasing, REM sleep बढ़ती रहती है. और एज के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली बेबीज लेस देन 1 year of age, they tend to have higher time spent in the REM or the active sleep. That is why उनकी जो नींद होती है वो कच्ची होती है, इसको हम कहते हैं. So they tend to wake up little earlier, and they have a shallow sleep, or say more active sleep as compared to adults. Adults, as we say, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सोते हैं. Okay. Right. छोटे बच्चे तो बिल्कुल कुछ गिरा और उठ जाएंगे साथ के साथ. जी. तो हम सबने देखा ही है. All parents हाँ know जी. that. So my next Yeah. question to you, Dr. Ridhi, is कि what are the age-specific timing for sleep for different kids? Like छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कितना appropriate time सोने के लिए होना चाहिए? सी हम इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से दैट इट विल वर्क फॉर ऑल बेबीज, बट ज्यादातर ये देखा गया कि जो स्मॉल बेबीज हैं दे विल स्लीप मोर. लाइक जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं दे कैन स्लीप इवन अप टू 18 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स ना. और डे टाइम स्लीप्स भी उनके 3 to 4 naps in a day they will take, and each nap will extend for say 2 to 3 hours at a stretch they can sleep. So most of the times they are sleeping, it is few times that they wake up, feed Leah, and then they go back to sleep again. So this is their normal routine. As they grow older, the number of daytime naps also increases, the duration of nap will also increase, and the nighttime sleepiness will increase gradually. By the time that the baby is around 8 months of age, beyond 6 months of age, then they may only wake up say for once or twice at night, and they may take the feed, and they may go off to sleep again. So as they grow older, the nighttime wakefulness will decrease, and the total duration of sleep would also decrease. Another point I would like to add is that there would be a minimum duration of sleep which is important for the body to rejuvenate, as you said in the beginning, because kids are so much into mobile and laptops these days because of online classes, as well as otherwise also so much exposure to media, that the minimum duration of sleep parents should be aware about that for a 1 year old child he should sleep around 10 to 11 hours per day. That would be the minimum. Then as the child grows older, say beyond 6 years, so at least 7 to 8 hours of sleep at night is must for the child to rejuvenate and repair his go ahead with his growth and development in the normal way. Very rightly put by Dr. Ridhi कि for older kids maybe 8 to 9 hours of sleep, and smaller kids at least 11 to 12 hours sleep is minimum required. इतना आपके बच्चे को सोना ही चाहिए, so that his bodily functions and his mental functions, his developmental projects are all on track, right? And very rightly put.
Ma'am, what about what happens if the baby don't get enough sleep? अगर आपके बच्चे को enough sleep नहीं मिलती तो उन पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? That is a very good question, Dr. Jaskar. If the child will not sleep enough, then one, there will be daytime sleepiness. They will not be active. They will be more irritable. There will be behavior disturbances will be there. Let's go the चिड़चिड़ा हो जाएंगे बच्चे, है ना? They will not concentrate on their studies, and behavior disturbances भी दिखेंगे. Then kids, older kids like adolescents who drive, there may be increased chances of road traffic accidents. Growth and development both will be hampered if the child is not sleeping well. Right. तो सोना बहुत जरूरी है, तो भूलना नहीं चाहिए हमारे लिए. And good for the first time parents, the things get easier. They tend to sleep more at night, and they tend to awake more during the day as the time progresses, especially in the first year, second half of the first year. Very right. Yeah. One question that parents frequently ask Dr. Jaskaran is, can you provide them any tips with putting their child to sound sleep? Any tips that you can help with? There are a lot of tips, but all the tips will not work for all the babies all the time. So कोई तो true. रामबाण tips नहीं है हमारे पास कि बच्चे को आराम से सुला सके. Yeah, there are few important things which you can take care of. So one of the thing जो concept सबसे important है यहाँ पे sleep hygiene का concept है. तो sleep hygiene के concept में होता है कि जो sleeping time है या sleeping place है उसको कैसे हम regulate कर सकते हैं. तो good practice is to put the baby to sleep at the same time every day. अगर आप ऐसी हैबिट डेवलप करेंगे तो देन द बॉडी इटसेल्फ गेट्स अट्यून टू दैट कि इस टाइम पे हमारा को रेस्ट का टाइम है, तो बच्चे की ये हैबिट अच्छी बन जाती है. इवन ड्यूरिंग योर हॉलीडेज एंड फॉर एग्जांपल वीकेंड्स आल्सो, जो वेरिएशन है इस टाइमिंग की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. वी शुड ट्राई टू स्टिक टू दैट टाइम, मे बी हाफ एन आवर 1 आवर अप डाउन, बट उससे ज़्यादा हमें वेरिएशन नहीं करना चाहिए. सेकंड, जहाँ जिस एरिया में हम बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट शुड बी इन अ वेरी काम इन्वायरमेंट. वहाँ पे लाइट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, साउंड कम से कम होनी चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं, जो चाहे टीवी है, मोबाइल है, चाहे टैबलेट्स हैं, ये उससे दूर होने चाहिए ताकि बच्चे को एक साउंड इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर वो आराम से रेस्ट कर सकता है. एंड इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं, जैसे छोटे बच्चों को हम वार्म बेदिंग करा सकते हैं, स्पेशली जैसे भी आजकल हमारी समर सीजन चल रहा है. शाम के टाइम पे अगर हम नहला के मसाज करके बच्चे को सुलाएं तो दे टेंड टू स्लीप बेटर एट नाइट. इसके अलावा थोड़े से बड़े बच्चों के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेल देम अ स्टोरी सोने के टाइम. तो ये तो एज ओल्ड चीज है, हमने भी सुनी है, हम भी आगे सुना सकते हैं अपने बच्चों को. तो हमने भी पढ़ी है अपने बच्चे बिल्कुल, तो दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट. एंड इट इज़ गुड कि जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम, जैसे मैंने बताया, टीवी गैजेट्स को दूर रखें. और हाँ, जो फूड प्रोडक्ट्स में कैफिनेटेड ड्रिंक्स, हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा हम अवॉइड करें बिफोर स्लीपिंग टाइम, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी बढ़ती है इनके साथ, एंड दे इवन डिसरप्ट द नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल बच्चों की. तो इनको अवॉइड करना चाहिए. ओवरऑल हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छे नहीं रहते, प्लस स्लीप में भी ये डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं. You have cleared most of the points, Dr. Jaskaran. So to summarize, like they should not be away from, they should obviously away from mobile, and mobile and TV should be less as possible at night when they are about to sleep. And then reading a book to them would be really nice if we can read a book to them. And then ज़्यादा time में variation मत कीजिए. जो बच्चे को सुलाने का है उसको उसी के आसपास रखिए. आधा घंटा आगे पीछे ठीक है, but not more than that. एक और चीज़ जो मैं शायद बताना भूल गया, वो ये है कि एक जिस बच्चे का पेट भरा हुआ है वो अच्छे से सोएगा. तो मेक श्योर दैट योर बेबी इज, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर ऑफ एज, अच्छे से अगर उसने फीड ली होगी तो दे विल टेंड टू स्लीप बेटर. अगर उनका पेट नहीं भरा हुआ है तो जल्दी उठेंगे, आपको तंग करेंगे. सही बात है, भूखा मत सुलाओ. तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हम सेफ स्लीप प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, और एक जो डेंजरस सी टर्म पेरेंट्स बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स या सूडी, इसका क्या मतलब होता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? SUDI is very alarming and very scary for parents. Basically, sudden unexplained death in infancy. Although cases are very rare, but it is a very scary thing for any family. So basically, उसके लिए क्या करना है कि बेबी को बैक पे सुलाना है आपने, है ना? बेबी की बैक बेड के ऊपर होनी चाहिए और he should be facing up. तो that is the safest position जिसमें कि SUDI के chances बहुत कम है, minimal है.
एंड अनदर थिंग, जो बहुत छोटे बेबीज हैं जैसे लेस देन 1 ईयर, आप उसी रूम में सुलाइए उनको, बट बेड शेयरिंग मत कीजिए. दे शुड बी ऑन अ सेपरेट बेड और a separate cot. और उस कॉट की बेड की जो शीट है दैट शुड बी टाइट, दैट शुड बी नाइसली टक्ड इन. देयर शुड बी नो लूज पिलोज एंड लूज मैट्रेस नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट पिलोज नहीं, नो सॉफ्ट टॉयज अराउंड देम, है ना. हालांकि बहुत शौक रहता है छोटे बेबीज के आसपास हम लोग सॉफ्ट टॉयज रख देते हैं, बट देन दैट इज नॉट सेफ फॉर द बेबी, दैट शुड नॉट बी फॉलोड. एंड प्लस मेनली तो यही है कि सूडी को प्रिवेंट करने के लिए दीज आर दी कॉमन थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. इसमें एक स्मोकिंग अवॉइड करने का भी रहता है, और हाँ जी, हाँ एक जी. एक पेरेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग का भी रहेगा. ब्रेस्ट फीडिंग का भी ब्रेस्ट रहता है, फीडिंग तो भी, बिल्कुल. हाँ, ब्रेस्ट फेड बेबीज में चांसेस के कम देखे जाते हैं, एंड स्मोकिंग शुड डेफिनेटली अवॉइड. बहुत सही डॉक्टर. ठीक है. तो बैक टू स्लीप इज ठीक बहुत है. इंपॉर्टेंट. ऐसा पूरा एक प्रोग्राम चलाया गया अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा कि हम अगर हम्म. बैक रख के सोते हैं तो ऐसे एडवर्स इवेंट्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, दूसरा डॉक्टर जिसका मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कई पेरेंट्स बोलते हैं जैसे हमारे बेबीज रात को उठ के बोलते हैं, नींद में बोलते हैं या नींद में चलते हैं, नींद में डर जाते हैं, है ना, नाइटमेयर्स, नाइट टेरर्स. व्हाट टू डू अबाउट दैट? शुड दे कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन फॉर दैट? व्हाट वुड यू सजेस्ट? इसमें बेसिकली दीज आर कॉल्ड, टेक्निकल लैंग्वेज में दे आर कॉल्ड एज पैरासोमनियाज और स्लीप डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स. तो इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, कई बच्चों को नाइट टेरर्स या नाइट मेयर्स होते हैं जो कि कॉमनली देखा जाता है, और थोड़ा अनकॉमन होता है हमारा नाइट टॉकिंग, स्लीप टॉकिंग या स्लीप वॉकिंग. तो डेफिनेटली जो स्लीप वॉकिंग है काफ़ी अलार्मिंग एक्टिविटी है. अगर कोई बच्चा ऐसा करता है या इवन कोई एडल्ट ऐसा करता है तो इट वुड बी क्वाइट डेंजरस. इसमें वो अपने आप को इनएडवर्टेंटली हर्ट कर सकते हैं. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इट इज एसेंशियल दैट हम किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें. रिगार्डिंग ओके. स्लीप टॉकिंग बहुत कॉमन सी चीज़ है ये बच्चों में. हम एक्चुअली कई बार देखते हैं, इवन कई बार बच्चा बीमार होता है, थका होता है या फीवरिश होता है, तब भी ऐसा हमने सुना है पेरेंट्स को बताते हुए कि ये रात को सोते हुए बोलते हैं. तो इट इज़ नॉट समथिंग वी शुड ईजिली कंसर्न यू एज अ पेरेंट. हाँ, अगर ये बार बार होता है एंड इट इज़ डिस्टर्बिंग द बेबीज नाइट टाइम स्लीप एंड इवन इट इज़ अफेक्टिंग द डे टाइम एक्टिविटीज़, तो आपको ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए. Night terrors and nightmares are very मतलब they are more physiological I would say, क्योंकि जो हम दिन में करते हैं उसी के बारे में रात को सोचते हैं. और कई बार जैसे अगर हमने बच्चों को कुछ एडवेंचरस मूवीज दिखा दी या कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ ली या कोई इवेंट ऐसा देख लिया, तो बच्चे उसके बारे में ड्रीम करके उठ सकते हैं. तो हाँ, अगर एक लेवल से ज़्यादा ये उनकी नाइट टाइम एक्टिविटी को हैम्पर करते हैं या डे में भी उनको इस चीज़ का फोबिया या डर रहता है, तो डेफिनेटली वी शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन. एंड मे बी समटाइम्स योर पीडियाट्रिशियन आपको आगे किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेज सकता है अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है. तो ओके. चीज़ों का ध्यान रखिए, जहाँ पे ज़रूरत है डेफिनेटली अपने एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कीजिए. Right, Dr. So there are a few behavior problems which can show, which the child can show during sleep, but then beyond a limit, then you should seek a consultation with the pediatrician. Thank you so much, Dr. Jaskaran. I hope we both could help you. We could solve some of your queries regarding sleep. For further such videos, for parent education videos, please follow us on Instagram or Facebook. AOP Chandigarh. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, friends. Thank you.